Dima Hasao DCC demands immediate restoration of peace in Dima Hasao. Dima Hasao District Congress Committee demanded immediate restoration of peace in the district, which has been disturbed following the incident of Ranger Bill on August 26, where 5 innocents lost their lives and 5 trucks were burned down. Samarjit Haflongbar, spokesperson DCC in a press meet held on Sunday, said he has written a letter to Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for taking initiative to restore peace in the area of Lanka, Hojai, as possibility of worsening situation prevailed following the incident of Ranger Bill, Tiungbra area, Dima Hasao. সাংবাদিক বন্ধুসকল সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মোৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এখন পত্ৰযোগে তেখেতক যোৱা 26 তাৰিখত ৰেঞ্জাৰ বিল ডিমা হাছাওত যিটো ঘটনা ঘটিছিল, য'ত 5টা ট্ৰাক জ্বলাইছিলে আৰু 5খন নিৰীহ ড্ৰাইভাৰক হত্যা কৰিছিল। আৰু গোটেই ড্ৰাইভাৰ লংকাৰ বাসিন্দা হজাই জিলাৰ। গতিকে হজাই জিলাত লংকাৰ বাসিন্দাই তাত পৰিবাৰৰ ভুক্তভোগী পৰিবাৰ আৰু পৰিবাৰৰ আত্মীয় আৰু লংকাৰ ৰাইজ খুব সিহঁতক দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কিছু আন্দোলন কাৰ্যসূচী তেখেতলোকে লৈছিল। গতিকে তাত যিটো মিডিয়াৰ থ্ৰুদি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু জাতিগত ব্যক্তিক আৰু ডিমা হাছাও জিলাক টাৰ্গেট কৰি কিছু মন্তব্য তাত দিছিলে। গতিকে এই মন্তব্যটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা যাতে এই উগ্ৰপন্থী বা যিটো 26 তাৰিখৰ ঘটনালৈ আমি সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ যাতে নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ দক্ষ নেতৃত্বত তেখেতে নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব। আৰু তাৰ লগে লগে মই তাত আইন শৃংখলা যে সমস্যা আহি পৰিছে, তাত আইন শৃংখলাটো ভাল কৰিবলৈ যাতে ডিমা হাছাও ৰাইজৰ যাতে কোনো অঘটন নঘটে, এইটোৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেখেতে কৈছোঁ। আৰু ডিমা হাছাও আৰু লংকাৰ ৰাইজৰ যিটো ভুল বুজাবুজি হৈ পেলাই যিটো সমস্যা যিটো ওলাইছে, এই সমস্যা নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি শান্তি তাত কেনেকুৱা বজাই ৰাখিব পাৰে, তাত ৰাইজৰ এই ডিমা হাছাও আৰু লংকাবাসীৰ মাজত আমি শান্তিত কেনেকুৱা বসবাস কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে মই লংকা ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে ঘটনাবিলাক, এই ঘটনা কোনোবা দুষ্কৃতিয়ে কৰিছে বা কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনো হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়া গোটেই জাতিক আৰু ডিমা হাছাও জিলাক ৰাইজক সামৰি লোৱাটো এইটো উচিত নহয়। গতিকে আমিও ভুক্তভোগী। ইমান 20-25 বছৰ ধৰি ইয়াত উগ্ৰপন্থীৰ অশান্তিৰ যিটো বাতাবৰণ আছিলে তাৰ ভুক্তভোগী আমিও। বহুত ৰাইজে ইয়াতে ভাল মানুহ, শিক্ষিত মানুহে জীৱন ত্যাগ কৰিব লাগিছে তেতিয়া। গতিকে আমিও ভুক্তভোগী। গতিকে আমি আৰু লংকা ৰাইজ সদায় আমি এটা সম্পৰ্ক থাকে, আমাৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক, ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক, পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আমাৰ আছে। আমাৰ কিছু বস্তু ব্যৱসায় আদান প্ৰদান হয়, কিছু বস্তু আমি লংকাৰ পৰা আনিব লাগে, আৰু লংকাৰ ৰাইজেও কিছু বস্তু ডিমা হাছাও ৰাইজৰ পৰা লৈ যাব লাগে। গতিকে সদায় আমি এটা পৰিবাৰৰ নিচিনা আছিলে। আমি আশা কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতে আমি একেই পৰিবাৰৰ নিচিনা থাকিম। গতিকে মই এপিল কৰিছোঁ, মই আহ্বান জনাইছোঁ লংকা ৰাইজক যে আমি এই যে ঘটনাটো এটা জাতি, এটা জিলাৰ বাবে নলয়, আমি আমাৰ এটা সমস্যা, এটা ষ্টেটৰ সমস্যা, প্ৰদেশৰ সমস্যা বুলি ভাবি আমি একেলগে যুঁজ দি কেনেকুৱা শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰে, আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক, ৰাজ্য চৰকাৰক কেনেকুৱা আমি হেঁচা দিব পাৰে যাতে অতি শীঘ্ৰেই এই দুষ্কৃতিবিলাকক, যি 26 তাৰিখৰ ঘটনা সংঘটনাত জড়িত আছে, এই দুষ্কৃতিবিলাকক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে, এইটো আমি ব্যৱস্থাটো আমি একেলগে যুঁজিব লাগিব।
আর তার লগে লগে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই ভুক্তভোগী পৰিবাৰক অতি সোনকালে যাতে ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু তাত যি আইনগত যি দুষ্কৃতিবিলাকক পানিছমেণ্ট দিব লাগে, শাস্তি দিব লাগে, এইটোৰ ব্যৱস্থা যাতে সোনকালে কৰি দিয়ে, মই আশা এইটো কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে গোটেই লংগা ৰাজ্যক আৰু ডিমা হাছাও ৰাজ্যক আমি ভাল পৰিস্থিতি আনি পেলাই কেনেকুৱাকৈ আমি অৰ্থনৈতিক, আমাৰ সামাজিক আমি কেনেকুৱা উন্নতি কৰিব পাৰোঁ, আমি লংকা ৰাইজ, ডিমা হাছাও ৰাইজটো, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কেনেকুৱাকৈ আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ, এইটোৰ কাৰণে আমি একেলগে যুঁজ দিবলৈ আমি লংকাবাসীক আহ্বান কৰিছোঁ। Daniel Langtasa MSc said government should take immediate steps to control the situation before it goes out of grip. Langtasa said leaders in power should also take steps to defuse the prevailing tensions without delay. He appealed not to criminalize the incident in the name of any particular community, which may disturb the communal harmony among the people. They also demanded proper compensation for the victim families while expressing deep condolences for the bereaved family. The press meet at Rajiv Bhavan on Sunday was attended by Mayanand Kemprai and Mahendra Kemprai, former president DCC. जो 26 अगस्त रात को जो दुर्घटना हुआ, डिमा हासाओ के बहुत ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी हम लोग ने दुख जता दिया है और प्लस इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग ने मांग किया है। इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ऐसा कुछ खबर सुनने को मिल रहा है कि कुछ आउटसाइड द स्टेट से भी कुछ इंटरफेरेंस, कुछ साजिश होने का चांसेस बहुत हाई है। सो इसलिए अभी तक फॉर एग्जांपल आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने भी, पुलिस ने भी कंफर्म नहीं किया है कि क्या डीएनएलए इसमें इन्वॉल्व था। सस्पिशन है बोल के बोल रहा है। डीएनएलए ने भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया है और बिकॉज डीएनएलए में डिमासा शब्द भी जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारा ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जिसके लिए जल्द से जल्द हम लोग को रिक्वेस्ट करता है कि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी को और हम लोग को होम डिपार्टमेंट को कि आप लोग प्लीज़ ये सिचुएशन को जल्दी कंट्रोल में लाइए। दुख का बात है कि अभी 48 आवर से ज़्यादा हो गया, लेकिन बिकॉज अभी तक अच्छा से हैंडल नहीं किया ये सिचुएशन को, इसलिए कल भी देखने को मिला कि लंका में प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ में बहुत अनफॉर्चुनेट और दुख का बात है कि स्लोगन्स भी रेस किया डिमासा का अगेंस्ट में, डिमा हासाओ का अगेंस्ट में। सो ऐसा सिचुएशन क्यों हो रहा है आज के दिन में? हम लोग को सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? देखो, आप लोग को लगता होगा ये क्या एक स्लोगन है, कोई एक दो एलिमेंट ने कर दिया, बोल दिया, छोटा मोटा बात है। हम लोग भी मानता है कि हम लोग अभी एक दो आदमी जो बोला वो पूरा लंका को रिप्रेजेंट नहीं करता है, होजाई को रिप्रेजेंट नहीं करता है, हम लोग भी मानता है। लेकिन ऐसा जो बात है, जो कम्युनल हेट्रेड का एक सीड, एक बीज जो लगा देता है, तो वो कितना दूर तक जाएगा, कब तक जाएगा, हम लोग बोल नहीं सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम लोगों एडमिनिस्ट्रेशन को एंड गवर्नमेंट को और काउंसिल को भी अपील करता है कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द इसको रिपेयर कीजिए। इट इज़ टू लेट, वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। और हम अपील करता है कि रिसेंटली हम लोग देखा है कि कल हम लोग का CEM ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल श्री देवोलाल गोल्लोसा ने भी स्टेटमेंट दिया। बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स, बहुत कुछ उसने बोला है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है बीजेपी गवर्नमेंट को कि हम लोग यहाँ से, इवन कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन में होके हम लोग अपील कर रहा है पीस मेंटेन करने के लिए। मैंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए से 27 अगस्त सुबह को ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था ताकि शांति बने रहे, लेकिन काउंसिल का लीडर्स लोग होके वो लोग विस्ताडोम में बिजी हो गया और यहाँ में प्रॉब्लम क्या हो गया उसको नहीं देखा। टूरिज़्म ज़रूरी है, कौन बोला टूरिज़्म ज़रूरी नहीं है? विस्ताडोम ज़रूरी है, कौन बोला ज़रूरी नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट कहाँ आएगा? अगर यहाँ में ऐसे सिचुएशन होने से टूरिस्ट कहाँ आएगा? तो गवर्नमेंट का ड्यूटी सिर्फ एक कोच
एक ट्रेन का एक कोच, एसी कोच लाना सिर्फ वही ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी है कि मतलब शांति बनाए रखने के लिए ये आम जनता का ड्यूटी नहीं है ना, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है, ये काउंसिल का ड्यूटी है। तो इतना दिन से हम लोग को वार्निंग सिग्नल्स मिल रहा था, 15 अगस्त को बंद कॉल किया, बहुत सारा मौका मिला, बहुत सारा टाइम मिला सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्या बात से, क्या कुछ साजिश है, क्या जानबूझ के हो रहा है, सवाल तो उठेगा ना। इसलिए जल्द से जल्द, सिर्फ ये नहीं, हम लोग तो बार बार बोल रहा है कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन टॉप लेवल, सीबीआई बोलो, सीआईडी टॉप लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि मतलब बाद में ऐसा कोई फिर बलि का बकरा बन के ऐसा करके हम लोग को गुमराह करके सॉल्व करा बोल के, लेकिन सच्चाई में क्या है उसको अगर छुपा के रखेगा तो नहीं होगा। और हम रिक्वेस्ट करता है कि बीजेपी पार्टी को भी, आप लोग के पास इतना मेजॉरिटी से आप लोग बैठ के है, काउंसिल चला रहा है, आप लोग के पास बहुत टैलेंटेड आदमी लोग हैं, वो लोग को सीएम का पद दे सकता है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है सीएम, और उसमें एक आदमी को रख दिया जो रिसेंटली लास्ट ईयर एक न्यूज़ में भी बोला था कि डिमा हसाओ को मुस्लिम फ्री कर देगा, बोला था ना। ऐसा स्टेटमेंट देखो कैसा लगता है सुनने में, आज के दिन में ये हम बोलने को कैसा लगता है, लेकिन जो बोल दिया तो हम नहीं बोला ना, जो बोल दिया ये पूरा दुनिया के लिए है, अभी भी है ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसा वाला बोलेगा तो आज के दिन में देखो उसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर भी गिरेगा ना। आदमी लोग सोचेगा कि आप लोग, क्योंकि एक सीएम पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। कल हम एक टॉक शो अटेंड किया, वहाँ में हमको होस्ट ने पूछ दिया कि आपका सीएम ने अच्छी तरह से अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, और लोकेशन में जाके थोड़ा सिचुएशन को वो कंट्रोल क्यों नहीं किया, आदमी से बातचीत क्यों नहीं किया, हम क्या जवाब देगा उसमें बोलिए। और प्लस ऊपर से इन द रिकॉर्ड ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है कि डिमा हसाओ को मुस्लिम फ्री कर देगा, ऐसा उसको केस कब तक हम लोग डिफेंड करते रहेगा, कब तक हम लोगों ठीक है डिमा हसाओ को बदनाम नहीं करना है, डिमासा समाज को बदनाम नहीं करना है बोल के हम लोग इधर से हम लोग छुपा के हम लोग बचाने का कोशिश करता है, और वो कैमरा में आके क्या क्या बोल देता है। अभी कल का इंटरव्यू प्रेस स्टेटमेंट देखिए, वो क्या बोल रहा है, वो दिगंत दास बोल के एक जर्नलिस्ट, कौन है दिगंत दास, यहाँ से हम लोग को क्या लेना देना मालूम नहीं, उसके साथ में आधा घंटा दिगंत दास के बारे में चर्चा कर दिया, और बोल दिया कि दिगंत दास को तो हम पहले गाड़ी गिफ्ट दिया। तो हमको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया, दिगंत दास को क्यों गाड़ी गिफ्ट दिया? दिगंत दास तो हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में कभी नौकरी नहीं किया, कभी कुछ काम नहीं किया, तो उसको गाड़ी क्यों गिफ्ट दिया, किसका पैसा से गिफ्ट दिया? अभी डीएसडी जे होने के टाइम में दिया, वो भी गलत है, क्योंकि डीएसडी जे को पैसा कहाँ से कलेक्ट करता रहा, वो तो आदमी लोग देने वाला है, तो वो तो पब्लिक का पैसा है ना, काउंसिल का पैसा से दिया, वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। तो आज बोल रहा है कि दिगंतो के साथ में बहुत प्रॉब्लम हुआ, इसलिए दिगंतो उसको अगेंस्ट में कर रहा है। अरे तुम लोग दोनों का आपस का झगड़ा में तुम लोग डिमा हसाओ को बदनाम कर रहा है। और एक स्टेटमेंट बोल दिया, बहुत ताजुब लगने वाला स्टेटमेंट, दिगंतो ने उसको बोला कि हिमंत बिश्व शर्मा के साथ में तो दिगंतो ने लिंक लगा के देवलाल गोल्लोसा को सीएम बनाया है बोल के, ब्लैकमेल करा। हाँ, ब्लैकमेल करा बोला। लेकिन ताजुब का बात है कि देवलाल गोल्लोसा ने ये बात को डिनाई नहीं किया। तो आप लोग सब मालूम है, निरंजन होजाई सीएम बन के था उस टाइम में कैसा सिचुएशन आया, तो मेरा माइंड में तो डाउट गिर गया। तो ऐसा मतलब दिगंतो दास ने मतलब उसको लिंक लगा के मतलब अनलॉफुली बना दिया नहीं क्या, क्योंकि हम लोग मालूम है कि उस टाइम में तो अच्छी तरह से, इस बार भी ऐसा हुआ, इस बार भी सीएम जब सेलेक्ट किया, हम भी एमएससी है, लेकिन हम लोग को यहाँ में वोटिंग करके जो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज से जो होना चाहिए, हम लोग वोटिंग करके सीएम सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट दिसपुर से सेलेक्ट होके आ गया। तो ये हम लोग को 6 शेड्यूल के लिए भी डेंजर है। हु नोस, ऐसा वाला बहुत लोग आदमी लोग होगा दिसपुर में जो दलाली करके हम लोग को सीएम सेलेक्ट करता है। इस बार भी तो वोटिंग नहीं हुआ ना सीएम का, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया, तो डायरेक्ट दिसपुर से। तो ये कल जो सीएम देवलाल गोल्लोसा बात बोला, उसको दिगंतो को बीच में रिलेशन, हमको तो लगता है कि दोनों पहले में एक साथ काम करता रहा, दोनों में कुछ मतलब पैसा का लेन देन होकर झगड़ा हुआ होगा, और आज मतलब पूरा चीज़ तो खुलासा हो रहा है। उसको ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका ऊपर में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कहाँ से हम लोग को यहाँ का पैसा से किसी को गाड़ी गिफ्ट कर देता है, बोला क्या बात से गाड़ी गिफ्ट करता है, कुछ हम लोग को मालूम नहीं, इतना लीकेजेस हो रहा है। तो बहुत दुख का बात है कि ऐसा टाइम में हम लोग का पॉलिटिकल लीडरशिप का क्राइसिस हो रहा है। हम लोग को ऐसा समय में हम लोग को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, और जो डिमासा समाज का और डिमा हसाओ का पूरा नाम जो अभी बदनाम हो रहा है, हमको बहुत दुख लगा, हम कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा।
और हम इसलिए रिक्वेस्ट करता है, कल मैंने डिमा हसाओ को डीसी के साथ में भी बात किया था ओवर फोन, और मैंने बोला था कि आप काइंडली इमीडिएटली हो जाएगा डीसी के साथ में बात कीजिए, लंका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है बात कीजिए, ताकि ऐसा प्रोटेस्ट और ना निकले, ताकि आदमी लोग सड़क में ना निकले और डिमा हसाओ और डिमासा कम्युनिटी का नाम लेके ऐसा नारा ना लगाए। हम लोग ने स्ट्रिक्टली बोला ये हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस, ये जो घटना हुआ है उसमें जो विक्टिम फैमिली है वो लोग का दर्द हम लोग समझ सकता है, और हमसे ज़्यादा कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद एक विक्टिम फैमिली का है। मेरा पिताजी निंदू लांगटासा का साथ में भी ऐसा घटना हुआ था 4 जून 2007 में। आज तक जस्टिस नहीं मिला है, आज तक हम जस्टिस के लिए रुक रहा है। हम लॉ एंड इंडिया का जस्टिस के ऊपर में विश्वास है बोल के आज तक हम रुक रहा है। नहीं तो मेरा जैसा बहुत जन होगा जो जस्टिस नहीं मिल के वो लोग को भी दिमाग खराब होकर वो लोग भी बंदूक उठाएगा। तो उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। लेकिन आज देखिए हम लोग का लीडरशिप क्या हो रहा है, असम में लीडरशिप क्या दिखा रहा है, क्यों इतना ड्रग्स को लेके इतना एक्टिव हो रहा है, लेकिन आदमी मर रहा है या में उसको लेके क्यों अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। अभी तक तो चीफ मिनिस्टर आना चाहिए था इधर में, अभी तक तो इसके बारे में बहुत बड़ा एक प्रेस स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। डीएनएलए ने किया ना नहीं किया ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये सब चीज़ अब जितना आप लोग लंबा खींचेगा तो उतना प्रॉब्लम होगा। हम लोग को चीफ मिनिस्टर ने बोला था मई में कि डीएनए को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये बहुत बड़ा वर्ड है, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया बोलता है, आज में फिर बोलता है कि नहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसा करके आप लोगों ने पहले स्टेटमेंट देने के बदले ग्राउंड में आप लोगों ने काम करने से आज ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता रहा, 5 इनोसेंट आदमी नहीं मरता रहा, और डिमा हसाओ और डिमासा समाज ऐसा करके मतलब हम लोग को अपना नाम का बदनामी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए बहुत दुख का बात है। पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होना चाहिए, डिसाइसिव होना चाहिए, और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लीडरशिप तो कंप्लीट फेलियर हो गया, ये कंप्लीट फेलियर हो गया। इमीडिएटली आप लोग इसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो आने वाला दिन में और भी हम लोग का बदनामी होगा। ये हम लोग कभी भी हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी से भी क्यों ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि सीएम आके सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। वो बार बार खाली ओपोजिशन को अटैक करता है। हम लोग कितना साल से हम लोग रूलिंग में नहीं है, कितना बार बार क्यों अटैक करता है। अभी मोदी जी का वजह से मतलब शांति आया है बोला। सीएम खुद कल में बोला कि 2009 में हम जेल में था, वो बोला हम जेल में था बोल के कल खुद एडमिट किया। अभी जेल में तो कुछ अच्छा काम कर ले तो जेल में नहीं गया होगा, कुछ तो गलत काम करा बोल के जेल में गया होगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को मेन स्ट्रीम में लाया कौन, मेन स्ट्रीम में लाया कौन। 2012 में बोला मेन स्ट्रीम में आया, मोदी जी को थैंक्स दिया। 2012 में तो मोदी जी का सरकार नहीं था इंडिया में, ना था, ना कन्फ्यूज हो गया आप। 2012 में मनमोहन सिंह था प्राइम मिनिस्टर, ना मोदी जी। किसने आपको मेन स्ट्रीम में लाया। आप तो बोल दिया अभी तो सबको गोली मार के ख़त्म कर देगा जो लोग खराब काम किया। उस टाइम का सरकार, आप लोग जो काम किया, आप लोग को गोली नहीं मारा, आप लोग को टेबल में लाया, आप लोग को मेन स्ट्रीम में लाया, आप लोगों को मदद किया। इसलिए आज आपका कैडर लोग कोई कोई बिजनेस खोल सक रहा है, कोई कोई किसी का घर का फैमिली में नौकरी मिल गया। इसलिए तो आप लोग भी लीडर से थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए, आप लोग थोड़ा समझिए। और सबसे पहले बड़ा बात है कि आज जब पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब पूरा पावरफुल है सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, तब तो आर्टिकल 244A को आप लोगों बार बार डिले मत करो, उसका एक पॉलिटिकल टॉक्स में आओ। आप लोग जिस दिन पॉलिटिकल ग्राउंड में आर्टिकल 244A का बारे में बात करने लग जाएगा, वो जो इंसर्जेंसी है वो भी कम हो जाएगा। और करप्शन का बारे में बार बार बोल रहा है कि करप्शन से कैसे लिंक कर दिया। जब तक करप्शन रहेगा, जब तक गांव-गांव में अच्छा से पैसा सबके हाथ में इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगा, तो आदमी लोग में करप्शन का गुस्सा से ये मतलब इंसर्जेंसी भी बढ़ते रहेगा। और अभी का डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में इतना करप्शन हो रहा है, हम लोगों ने FIR दे के पूरा प्रूफ दे के इतना खुलासा कर दिया, उसके बाद में भी हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ असम और यहाँ का जो काउंसिल है क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। तो इसलिए हम बोलना चाहता है कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नेंस, जल्द से जल्द इसको आप लोगों को बदलाओ, नहीं तो आने वाला दिन में भी और प्रॉब्लम होगा। और खाली ब्लेम करने के लिए ओपोजिशन को ऊपर में उंगली उठाने से, और आदमी लोग तो समझ गया है डिमा हसाओ का आदमी लोग, जितना बार आप लोग ओपोजिशन के ऊपर में उंगली उठाता है, अभी डिमा हसाओ का पब्लिक भी हंसता है आप लोग के ऊपर में। इसलिए प्लीज़ और ऐसा बंद करो। और ये मैं बोल के ख़त्म करता हूँ कि इमीडिएटली कॉम्पेंसेशन जो फैमिली को दे के जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द जस्टिस देना है, और ये
शांति वापस लाना है डिमा हसाओ में। थैंक यू। जस्टिस डिले मीन्स जस्टिस डिनाई। 2008 का जो घटना हुआ उसका सेम रिपीट, सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस आज 26/2021 में हुआ। तो 2008 में जो घटना हुआ उसका तो ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया, चार्जशीट भी सबमिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, जिस जिसका नाम है वो तो सब कुछ जानकारी है। तो अभी तक उसको भी जस्टिस नहीं मिला है। तो आज फिर आफ्टर 13 ईयर्स सेम घटना हुआ है। तो 13 अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तो जस्टिस कब मिलेगा पता नहीं। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट थोड़ा सीरियस होना चाहिए कि जो भी विक्टिम फैमिली है उसको जल्द से जल्द जस्टिस दिलाने के लिए मेरा वही रिक्वेस्ट है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीट यहीं ख़त्म करता है। धन्यवाद।